बात सुन रहे हैं मेरी? यस सर। आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं, जो बेसिकली चैप्टर 3 की कंटिन्यूएशन ही है। चैप्टर 3 के जो कल हमने यानी लास्ट क्लास में किया था उसके बाद वाला हिस्सा। तो देखते हैं हम इसको। आपको स्लाइड नजर आ रही है ये ग्रुप थ्योरी की? यस सर। यस सर। ग्रुप थ्योरी जी। सेकंड स्लाइड। यस सर, नजर आ रहा है। यस सर। जी। यस सर, आ we रही है। next use we next use induction to provide a definition of the power of group element. आप जानते हैं कि in the usual life what is the meaning of a square, a cube, a power 4? A square is just a into a cube is a into a into a. So using this concept, we define the power of elements in a group. Let G be an element of a group G. Then define G power 0 to be 1. 1 means identity element of the group. Power of any element of G as 0 means this is the identity element. And G power 1 to be just G itself. G square to be G into G, and inductively when n is positive, G raised to power n to be G into G power n minus 1. This simply means
G power n is equal to G n times. We can also define G power n when n is negative to be the inverse of G minus 1. This means you are just take the n absolute times n power of G inverse. In an arbitrary group G, the power of the element of G satisfy the familiar index laws. अभी देखते हैं हम कि कौन से laws हैं जो आपने 9th, 8th, 7th में कहीं पढ़े होंगे. The proof of these laws will turn out to be more difficult than might be anticipated. This is the proposition. Let G be an element of a group G and Rs be integers. Then G power R into G power S, this is equal to G power R plus S, and this is the same as G power S into G power R. तो यहां कम्यूट कर जाती हैं पावर्स ऑफ द सेम एलिमेंट. G power R into G power S, this is the same as G power S into G power R. And second part is G power R and then whole power S means G power RS, and G power minus R is equal to G inverse power R and G power R whole inverse, so that the inverse of G power R is G power minus R. जस्ट उसी तरह के लॉज हैं जो आपने 7वीं 8वीं में कहीं पढ़ रखे होंगे. इनका प्रूफ देखते हैं, लेकिन इनके प्रूफ के लिए हम जस्ट ग्रुप के एक्सियम्स ही यूज करेंगे. और आप जानते हैं कि ग्रुप के एक्सियम क्या थे. 4 एक्सियम थे. पहला था क्लोजर लॉ, दूसरा लॉ था एसोसिएटिव लॉ, तीसरा था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा था एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ जी. और एसोसिएटिव लॉ की मदद से हम देख चुके थे कि 3 एलिमेंट ही नहीं बल्कि 3 से ज़ायद एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन के लिए ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं रहती जब एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर जाए. We will give the proof of one in detail. Consider first the case when R and S are both positive and proceed for induction on R. आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में बहुत सारे रिजल्ट जो हैं वो इंडक्शन से प्रूव करते हैं. आप स्टार्टिंग वैल्यू जो है R इज इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूफ R इज इक्वल टू 1 के लिए आप प्रूफ करते हैं, और R इज इक्वल टू K प्लस K के लिए आप ट्रू मान लेते हैं और उसकी मदद से K प्लस 1 के लिए प्रूफ करते हैं. इंडक्शन जो आपने कहीं पिछले सेमेस्टर्स में पढ़ रखी होगी. तो फर्स्ट फॉर R इज इक्वल टू 1, the equation, जो expression 1 can be written as G into GS, and this is the same as G1 plus S by definition. क्योंकि पीछे जो आपने डेफिनेशन पिछली स्लाइड पे देखी उसमें यही था कि आप इसको एक और ऐड कर देंगे. The inductive hypothesis is that G power R into G power S is equal to G R plus S. Now हमने R की जगह पे R प्लस 1 यानी K की जगह पे K प्लस 1 के लिए प्रूव करना है यूजिंग दिस फैक्ट जो आपको आ गया K के लिए. तो दिस इज G पावर R प्लस 1 कैन बी रिटन एज G इंटू G पावर R इंटू G पावर S. यूजिंग एसोसिएटिव लॉ you can put brackets on the last 2 elements, and by definition of this product this becomes G into G raised to power R plus S, and this whole becomes G raised to power R plus S plus 1 as required. तो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इंडक्शन से हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रू है फॉर ईच R and S. Now consider the case when one of R or S is 0. अगर इन दोनों में से एक 0 हो जाए, क्योंकि यहाँ हमने R को पॉजिटिव लेके प्रूव किया, अब हम R को 0 रख के प्रूव करने लगे. तो G इज इक्वल टू 0 इंटू G रेज टू पावर S. हमने पीछे ये डेफिनेशन जब की तो बताया कि G पावर 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट.
So this is 1 into g power s, and using the axiom of identity, this becomes g raised to power s, that is g raised to power 0 plus s. The proof when s is 0 is similar. इसी तरह से आप अगर s 0 हो जाए तो उसका प्रूफ कर सकते हैं. We next suppose that r and s are both negative. The idea now is to use the definition of negative powers together with the case already established when the indices are both positive to complete the proof in this case. तो अब हम वो केस ले रहे हैं जिसमें r भी नेगेटिव है और s भी नेगेटिव है, और पावर नेगेटिव का मतलब क्या था कि इनवर्स की पावर आप एब्सोल्यूट वैल्यू टाइम कर देते हैं डिफाइन. तो g की पावर r जो है, दिस इज नाउ इक्वल टू g रेज टू पावर माइनस r इनवर्स. क्यों? क्योंकि r खुद नेगेटिव था, इसलिए माइनस r जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा. सिमिलरली s नेगेटिव था, इसलिए उसकी पावर -1 जो है, s की पावर माइनस एस जो g की पावर माइनस एस जो है वो पॉजिटिव पावर बन जाएगी. और कल हमने एक प्रपोजिशन की थी कि a इंटू बी होल इनवर्स दिस इज इक्वल टू b इनवर्स a इनवर्स. ऑर्डर चेंज हो जाता है, तो इसलिए जब इनके इनवर्सेस को आप इकट्ठा करना चाहेंगे तो ये g की पावर माइनस एस पहले आ जाएगा और g की पावर माइनस आर बाद में आ जाएगा. तो g की पावर माइनस एस इंटू जी की पावर माइनस आर एंड इट्स इनवर्स. और चूंकि माइनस एस और माइनस आर दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए ये पावर्स ऐड हो जाएंगी. पिछला पार्ट जो हम अभी हमने प्रूव किया है इससे पीछे वाली स्लाइड पे, तो दिस बिकम जी पावर माइनस एस माइनस आर होल पावर -1. रीजन भी लिख दी कि माइनस आर एंड माइनस एस आर पॉजिटिव. तो दिस इज इक्वल टू जी पावर माइनस आर माइनस एस -1. Since minus r minus s are the same as minus s minus r, integers में addition जो है वो commutative है, and this one is becomes g power r plus s by definition. तो g power r into g power s अगर दोनों नेगेटिव हैं तो आपने प्रूव कर दिया कि this is equal to g power r plus s. Since r plus s is same as s plus r, it follows from this proof that g power r into g power s is same as g power s into g power r. So we are therefore left with the case when one of r and s is positive and the other is negative. The proof in these जी थोड़ा ऊंचा बोले भाई. सर प्रीवियस स्लाइड, सर प्रीवियस स्लाइड जो भी जी प्रीवियस स्लाइड. सर प्रीवियस स्लाइड शो कीजिएगा. ये प्रीवियस स्लाइड ही मैंने शो कर दी है 4. सर ये लास्ट स्टेप किस तरह आया है, ये जो बाय डेफिनेशन वाला है? जी ये देखें, r और s दोनों इंटीजर्स हैं, इसलिए r प्लस s वही होगा जो s प्लस r होगा. ठीक है. यस सर. तो जी आर इंटू जी एस दिस इज इक्वल टू जी आर प्लस एस, जो अभी आपने ये ऊपर ये प्रूव कर रखा है, एंड दिस वन इज इक्वल टू जी पावर एस प्लस आर, क्योंकि r प्लस एस इज द सेम एज s प्लस आर, और g पावर s प्लस r इज एक्चुअली gs इंटू जी आर. सर ये प्रूफ का लास्ट स्टेप, सर ये पूछ रहा हूँ कि सेकंड लास्ट स्टेप से लास्ट स्टेप किस तरह आया है सर? ये g की पावर माइनस r माइनस s और s की पावर माइनस r 1 थी. क्या ये वाला स्टेप जो है, ये कर्सर नजर आता है आपको?
जो ये यस सर, यही पूछ remove- रहा हूँ कि ये किस तरह है ऊपर वाले स्टेप से। नहीं, मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि ये कर्सर आपको नजर आ रहा है कि ये किस लाइन पे है? यस सर। अब इसको अगर देखें यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ठीक है? यस सर। तो इसमें से माइनस कॉमन ले सकते हैं आप पावर में से, यस। तो ये बन जाएगा माइनस आर प्लस एस ब्रैकेट में। यस सर। और ऊपर आप देखें आपने रखा था कि जी की पावर आर इज द सेम है जी की पावर माइनस आर माइनस वन। तो अब आप देखें ये है जी की पावर माइनस आर प्लस एस ब्रैकेट में और माइनस वन। सो दिस इज इक्वल टू जी की पावर आर प्लस एस। ओके सर। We are therefore left with the case when one of R and S is positive and the other is negative. The proof in these two cases are very similar, so we consider the case when R is positive and S is negative, leaving the other case to the reader. तो हम एक कर रहे हैं कि R को पॉजिटिव ले रहे हैं और S को नेगेटिव। इसी तरीके से आप S को पॉजिटिव और R को नेगेटिव लेके कर सकते हैं। There are three possibilities to consider. R greater than 0 and S is less than 0, then maybe R plus S is positive, maybe R plus S is 0, and maybe R plus S is negative. So first case, when R plus S is positive, by the case when both indices are positive, by the case when both indices are positive, जो हमने पहला शुरू का केस किया था, इसी में स्लाइड 2 पे किया था कि जब दोनों इंडिसेस पॉजिटिव हों तो आप जस्ट ऐड कर देते हैं इंडिसेस को। तो ये जी आर प्लस एस ये पॉजिटिव है, एस चूंकि नेगेटिव था इसलिए माइनस एस पॉजिटिव होगा। तो अब जी की दोनों पावर्स ही पॉजिटिव हैं। आर प्लस एस आपका सपोजिशन है कि ये पॉजिटिव है और एस नेगेटिव थी इसलिए माइनस एस पॉजिटिव हो गई। तो उस सेकंड स्लाइड की मदद से जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो दिस बिकम्स आर प्लस एस माइनस एस, और इसको सिंप्लीफाई आप करें तो जी की पावर आर रहेगी आपके पास, क्योंकि एस और माइनस एस जीरो होके जी की पावर आर। ठीक है, सिंस जी पावर माइनस एस द इनवर्स ऑफ जी पावर एस बाय डेफिनेशन वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय जी पावर एस। तो इस एक्सप्रेशन की दोनों साइड्स को आप जी की पावर एस से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड पे तो रह गया जी की पावर आर प्लस एस और दूसरी साइड पे हो गया जी की पावर एस इंटू जी पावर एस, जो यहां लिख दिया गया। ठीक है, क्लियर? और यही हमें प्रूफ करना था। सेकंड केस कि आप जी सर ये नेगेटिव इंडेक्स कभी नहीं ऐड होगा यहाँ पर? जी नेगेटिव इंडेक्स ऐड नहीं होगा कभी भी यहाँ पर? तो ऐड हुआ नहीं है, ये ऊपर ये कर्सर जहां पे आर प्लस एस माइनस एस, इसका मतलब क्या? प्लस माइनस एस। इससे ये दोनों जब आप ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? ये नंबर नहीं बनेगा। सर आप कह रहे थे कि माइनस एस इज अ पॉजिटिव। जी, माइनस एस जो है वो वैसे पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि एस नेगेटिव नंबर है। आपका क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव फिर माइनस एस को नहीं ऐड कर सकते? जी, अगर एस पॉजिटिव ले तब हम माइनस एस को नहीं ऐड कर सकते इसमें? देखें यही चीज तो हम प्रूव कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपने कहा क्या, द प्रूफ इज इन दीज टू केसेस आर वेरी सिमिलर सो वी कंसिडर द केस व्हेन आर इज ग्रेटर देन 0 एंड एस इज नेगेटिव। हम वो चीजें यूज कर रहे हैं जो हम कर चुके हैं। हम कर ये चुके हैं कि दो पावर्स अगर पॉजिटिव हों तो उनको ऐड कर सकते हैं। अब प्रूव हम ये करने लगे हैं कि एक पावर पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनको कैसे ऐड करना है। उसके प्रूफ के लिए हम ये वो चीजें यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी हमें पता है। हमें पता क्या है, जो सेकंड स्लाइड पे आपने किया था कि अगर पॉजिटिव पावर्स हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए आर प्लस एस में हमने माइनस एस को ऐड रखा पावर जो कि पॉजिटिव बन गए। तो अब इनको ऐड करके ये एक इक्वेशन बनाई
जो मेरा कर्सर जहां पे है, अब इसकी मदद से हम वो रिक्वायर्ड रिजल्ट लाने लगे हैं कि एक पावर हो एक नेगेटिव हो, उसको कैसे करना है। तो इसमें हमने क्या किया कि g माइनस एस इज द इनवर्स ऑफ g पावर s बाय डेफिनेशन। तो वी कैन मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय g पावर s। तो इस इक्वेशन को दोनों साइड से g की पावर s से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये एलिमेंट और इसको मल्टीप्लाई किया इसके इनवर्स से, तो ये दोनों खत्म हो गए और ये रह गया जी आर प्लस एस, और दूसरी तरफ आ गया जी की पावर एस इंटू जी पावर एस। तो ये हमें प्रूफ करना था। अब आप बताएं क्वेश्चन आपका ज़हन में क्या आ रहा है। अब आपने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव लेके किया, आर पॉजिटिव है एस नेगेटिव, लेकिन फिर भी एक कंडीशन लगाई है कि उनका सम दोनों का वो पॉजिटिव है। ठीक। तो नेक्स्ट आ गया आर प्लस एस इज जीरो। जब r प्लस एस जीरो हो जाएगा तो इन दिस केस s इज इक्वल टू माइनस आर, सो दैट जी एस इज बाई डेफिनेशन द इनवर्स ऑफ जी आर। अगर s माइनस आर के बराबर है तो जी एस जो होगा वो जी आर का इनवर्स हो जाएगा। एंड सो जी पावर आर इंटू जी पावर एस इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्स थे। आइडेंटिटी आ गया, और आइडेंटिटी कैन बी रिटन एज जी पावर जीरो। तो ये तीसरा हिस्सा भी आपके पास प्रूव हो गया कि r प्लस एस अगर जीरो हो जाए तो g की पावर r इंटू जी की पावर s दिस इज इक्वल टू g पावर जीरो। लास्ट, इफ r प्लस s इज नेगेटिव यूजिंग द केस व्हेन द इंडिसेस आर बोथ पॉजिटिव। फिर हम वो जो पहली स्लाइड पे दूसरी स्लाइड पे आपने प्रूव किया था कि अगर दोनों इंडिसेस पॉजिटिव हों तो फिर हम उनको ऐड कर सकते हैं। तो यहां r प्लस एस नेगेटिव और r पॉजिटिव है, ऊपर हमने फर्ज किया हुआ, तो इसलिए r प्लस एस जो नेगेटिव है उसकी माइनस से मल्टीप्लाई करके पावर कर रहे हैं, यानी उसका इनवर्स g ऑफ माइनस आर प्लस एस इंटू जी आर। अब r भी पॉजिटिव है और ये माइनस इंटू आर प्लस एस ये भी पॉजिटिव है, इसलिए जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो माइनस एस प्लस आर हो जाएगा, and this is equal to g raised to power minus s. Now again multiplying both side by g raised to power minus r, इधर से हम ताकि खत्म कर सकें the inverse of g power r। तो ये यहाँ पे g की पावर माइनस आर प्लस एस, और दूसरी तरफ आपके पास हो गई g की पावर माइनस एस इंटू जी पावर माइनस आर। नाउ टेक इनवर्स ऑफ बोथ साइड्स टू ऑब्टेन द रिजल्ट। अब दोनों का इनवर्स आप ले लेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगी। देखें मैं उसको दिखाता हूँ कि जब आप इसका इनवर्स लेंगे इस साइड का, तो आपके पास आ जाएगा जी की पावर आर प्लस एस, और जब इस प्रोडक्ट का इनवर्स लेंगे तो जी की पावर माइनस आर का इनवर्स पहले और जी की पावर माइनस एस का इनवर्स बाद में। तो जब g की पावर माइनस आर का इनवर्स लेंगे तो दिस इज द सेम एज g रेज टू पावर r, और g की पावर माइनस एस का इनवर्स g की पावर s के बराबर। तो रिजल्ट आपके पास हो गया जो आप प्रूव करना चाह रहे थे। नाउ द स्ट्रेटजी ऑफ द प्रूफ ऑफ 2 इज सिमिलर टू द अबव। 2 में का प्रूफ भी 1 की तरह ही है, एंड द details are left to the reader. For 3, suppose first that r is positive. थर्ड को मैं आपको बता दूं कि क्या थी स्टेटमेंट थर्ड की, देखें शायद इस स्लाइड में नहीं, इससे ऊपर वाली स्लाइड में जी, ये है कि g ऑफ माइनस आर दिस इज इक्वल टू g इनवर्स पावर r और g पावर r माइनस 1। The strategy of the for 3, suppose that r is positive, so that g power minus r is gr inverse by definition. An easy inductive proof shows that g minus 1 power r is the inverse of gr as required. If r is 0, then g power minus r is g inverse r
इज जी आर इनवर्स इज इक्वल टू 1। बार क्या अभी आपको सिर्फ ये रूल्स पता लग गया है कि एलिमेंट्स की पावर कैसे लेते हैं, ये उसी तरीके से है जो आपने 6, 7, 8 में कहीं पढ़ रखी है। इसका उस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ही है कि इसमें आपको रूल्स पता लग गया कि किसी एलिमेंट की पावर्स कैसे लेते हैं। Finally, if r is negative, then minus r is positive, and so we can again proceed the induction when r is -1। ये सिंपली आप देख लेंगे कि इसमें किस तरह से किया है। बाकी इनकी इंपॉर्टेंस ये है कि रिजल्ट्स आपको पता लग गया कि पावर्स को कैसे लेना है और इसके मीनिंग क्या है। तो रिमार्क पे हम आते हैं इस पे। The definition of G square when applied to a product such as xy whole square gives, अच्छा जब ये xy whole का स्क्वायर होगा तो इसका हरगिज मतलब नहीं कि दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर y स्क्वायर। ये आप में से अक्सर ही गलती करेंगे स्टूडेंट कि xy whole square does not means x square y square, this means xy into xy। Once again, temptations to interchange orders must be resisted. This element is not usually equal to x square y square। हाँ, अगर कम्यूटेटिव होता तो फिर ये x square y square हो जाता, अदरवाइज xy whole square means xy into xy। ये बात क्लियर हो गई आपको कि अगर प्रोडक्ट का स्क्वायर लेंगे तो उसका मतलब है वो जो प्रोडक्ट है वो 2 दफा लिखी हुई है। We next considered the idea of the order of an element G of a group G। ये एक important definition है next जो आ रही, order of an element of a group। देखिए ग्रुप के ऑर्डर का मतलब क्या है कि ग्रुप में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद, किसी ग्रुप G में मौजूद एलिमेंट्स की तादाद उस ग्रुप का ऑर्डर है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ग्रुप G था 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, देन द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 3। और अगर आपके पास ग्रुप G था +-1 एंड प्लस आयोटा, देन द ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज 4। एंड in the case of symmetric group S3, the order of this group is 6 क्योंकि उसमें 6 एलिमेंट थे। और Z जो कि अंडर एडिशन ग्रुप बन जाता है वो इन्फिनिट है क्योंकि उसमें एलिमेंट्स की तादाद आप काउंट नहीं कर सकते। तो यहाँ हम जो करने लगे हैं डेफिनेशन में वो उसके किसी एलिमेंट की पावर, उसके किसी एलिमेंट का ऑर्डर आप डिफाइन कर रहे हैं। देखिए डेफिनेशन क्या है कि लेट G बी एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G। The order of G is the smallest positive integer n such that G power n is 1। फिर से मैं ये लाइन पढ़ रहा हूं, The order of G is the smallest positive integer n such that G power n is 1। तो यहाँ हमने क्या किया, 2 चीज़ों पे एम्फेसाइज किया। एक ये कि वो स्मॉलेस्ट होगा, दूसरा ये कि वो पॉजिटिव होगा। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट g रेज टू पावर n इज 1, जो उसकी पावर आइडेंटिटी बना दे। इफ देयर इज नो पॉजिटिव इंटीजर सच दैट g रेज टू पावर n इज 1, वी से दैट g हैज इनफिनिट ऑर्डर। किसी के जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन इस डेफिनेशन के हवाले से? सर S3 का ऑर्डर 6 आपने बताया ना? ये S3 का ऑर्डर 6 जी, S3 का ऑर्डर 6, वो आपने वहां पे ग्रुप जब बना था उसके 6 एलिमेंट मैंने बोर्ड पे लिखे थे कि ये 6 परमुटेशंस हैं। और S4 का क्या होगा फिर? S4 का ऑर्डर 4 फैक्टोरियल, ये SN का ऑर्डर n फैक्टोरियल बन जाता है। ठीक है सर, ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ परमुटेशंस। हाँ, उस अगर S ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप इज इक्वल टू जितने एलिमेंट पे वो सिमेट्रिक सिमेट्रीज हैं तो उसका ऑर्डर
उसका ग्रुप का ऑर्डर जो है वो उसका फैक्टोरियल बनेगा। हर ग्रुप का ऑर्डर तो फैक्टोरियल नहीं, क्योंकि उसमें तो n का पता नहीं क्या होगा, वो सिमेट्रिक होगा भी कि नहीं होगा। सर ये तो एलिमेंट का ऑर्डर है सर ये ना? रिपीट सर समझ जी, नहीं आई ये इसमें। S4 में तो 8 में ट्रीज नहीं होती। एलिमेंट ऑर्डर है या ऑर्डर है? लिखा हुआ क्या है, द ऑर्डर ऑफ जी। डेफिनेशन जो हम कर रहे हैं वो एलिमेंट की ऑर्डर की डेफिनेशन है। उससे पहले मैं ग्रुप के ऑर्डर की डेफिनेशन बता चुका हूं। ग्रुप का ऑर्डर कोई और चीज है, एलिमेंट का ऑर्डर कुछ और है। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल से कोशिश करता हूं कि आपको बता सकूं। अगर आपको ओमेगा याद है, इस तरह ओमेगा को छोड़ देते हैं, इस ग्रुप को देखते हैं +-1 और प्लस आयोटा। ठीक है, ये ग्रुप जी जिसके एलिमेंट हैं +-1 और प्लस आयोटा। आप मुझे बताएंगे कि आयोटा की पावर 0 क्या होती है? वन ले लेंगे। 1 होगी, क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा है कि ग्रुप के किसी भी एलिमेंट की पावर आइडेंटिटी के बराबर, किसी भी एलिमेंट की 0 पावर आइडेंटिटी के बराबर है। तो आयोटा की पावर 0 1 हो गई। आयोटा की पावर 1 किसके बराबर होगी? आयोटा ही होगा। आयोटा आयोटा होगा। वेरी गुड। आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होगा? -1 -1 -1। आयोटा का क्यूब किसके बराबर होगा? आयोटा आयोटा। आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगी? 1 1। आयोटा की पावर 5? आयोटा आयोटा आयोटा। आयोटा की पावर 6? -1 आयोटा की पावर 8 किसके बराबर होगी? सर फिर 1 1। तो अब मेरे वर्ड्स पे गौर कीजिएगा। अभी आपने बताया कि आयोटा की पावर 0 इज 1, आयोटा पावर 4 इज 1, आयोटा पावर 8 इज 1, आयोटा पावर 12 इज 1। तो आप मुझे बता सकेंगे, आप बता सकेंगे कि इस ग्रुप में आयोटा का ऑर्डर क्या बना? 4n 4। सर तो 0 लिखा हुआ है 4 8 स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो 0 तो वैसे ही निकल गया क्योंकि पॉजिटिव नहीं है। बाकी जो पावर्स पॉजिटिव उसे आइडेंटिटी कर रही थी, उनमें सबसे छोटी पावर क्या थी? 4। तो आयोटा का ऑर्डर बना 4। ठीक है। इसी एग्जाम्पल में हम फिर से देखते हैं -1 की पावर। तो -1 की पावर 0 क्या होगी? -1 पावर 0 1 वो तो 1 1। ठीक है, -1 की पावर 1 किसके बराबर होगी? -1 -1। और -1 का स्क्वायर? 1 + 1 और -1 की पावर 3? -1 और -1 पावर 4? +1 जी। अब फिर अगर आप देखें तो आपने कहा कि -1 की पावर 0 1 के बराबर, -1 की पावर 2 1 के बराबर, -1 की पावर 4 1 के बराबर, -1 की पावर 6 1 के बराबर एंड सो ऑन। तो -1 का जब हम ऑर्डर देखेंगे तो 0 बीच में से निकल जाएगा कि कुछ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव लेनी है। तो ये जो पॉजिटिव पावर आई हैं वो क्या थी? 2 4 6 एंड सो ऑन। तो उसमें सबसे छोटी कौन सी थी? 2। तो -1 का ऑर्डर जो है किसके बराबर हुआ? 2 के बराबर। आप ये एनी एलिमेंट की क्वेश्चन अब पावर, आपके जहन में जो क्वेश्चन कोई आ रहा हो तो ऑर्डर के वाले से। सर आप ये एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर रहे थे ना? जी, अभी आप एलिमेंट के ऑर्डर की बात कर रहे थे।
अगर आपको ये भी पता नहीं लगा कि किस वक्त मैं ग्रुप के आर्डर की बात कर रहा हूँ और किस वक्त एलिमेंट के आर्डर की, तो फिर तो मेरा ख्याल आपको बिल्कुल ही कोई चीज़ पता ही नहीं लग रही। ये डेफिनेशन 3.9 आर्डर ऑफ एन एलिमेंट है, ग्रुप के आर्डर का, ग्रुप के एलिमेंट का आर्डर। और अच्छा, अब हम अगर आ जाएं, ग्रुप के ऑर्डर से बड़ा नहीं हो सकता, उस आर्डर से बढ़ नहीं सकता। ये आगे चल के हम पढ़ेंगे, मशहूर थ्योरम है कि एलिमेंट का आर्डर ग्रुप के आर्डर से नहीं बढ़ जाएगा। ये जब हम आगे चलते हैं कुछ हफ्तों के बाद आप उस थ्योरम पे पहुंचेंगे, तो ग्रुप आर्डर ऑफ एन एलिमेंट बढ़ नहीं सकता ग्रुप से, ग्रुप के आर्डर से। तो यहाँ देखें, अब ये जितने ग्रुप हम कंसिडर कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट वे में, ये आपके पास हम ऑपरेशन जो कंसिडर कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। अगर ऑपरेशन एडिशन हो जाए तो फिर आप उसी लिहाज से करेंगे, फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ऐड करेंगे। और आइडेंटिटी आपके पास 1 नहीं होगी, 0 होगी। अगर ग्रुप अंडर एडिशन है तो ये फर्क आपके पास पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेशन में 1 आप आइडेंटिटी लेते हैं और अंडर एडिशन वाले में 0 आइडेंटिटी लेते हैं। देखिए रिमार्क 1, इन एनी फाइनाइट ग्रुप ईच एलिमेंट नेसेसरली हैज फाइनाइट ऑर्डर। तो यही बात जो अभी आप में से किसी ने पूछी थी वो यहाँ भी आ गई कि अगर ग्रुप खुद फाइनाइट है तो उसके हर एलिमेंट का ऑर्डर भी फाइनाइट होगा। ये क्यों है, ऐसा क्यों होता है? तो देखें, टू सी दिस कंसिडर द पॉजिटिव पावर्स g, g square, g cube and so on of any element g of the finite group G। तो आपको पता है G भी G में, कैपिटल G में से है, G स्क्वायर भी कैपिटल G में है, G क्यूब भी कैपिटल G में है। तो ये सारी पावर जो आती जाएंगी ये कैपिटल G में आती जाएंगे। तो इसका मतलब है ये कहीं आइडेंटिटी बन जाएगी और रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज तो ये पावर तो आप इन्फिनिटी तक लेते चले जाएंगे, लेकिन G में तो एलिमेंट ही फाइनाइट है। जैसे आपने 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा था, तो आयोटा की आप पावर्स नहीं, 4 पावर के बाद वो रिपीट होना शुरू हो गए। तो यही यहाँ पे जी के साथ होगा कि वो फाइनाइट आर्डर के बाद, फाइनाइट पावर्स के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाए। सिंस दीज आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप एंड द ग्रुप हैज ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, this list must contain repetitions such that g raised to power r is equal to g raised to power s for some r and s with किसी एक को आप ग्रेटर फर्ज कर सकते हैं कि r is greater than s, then since the inverse of gs is g की पावर माइनस s, so g raised to power r minus s, इस इक्वेशन को मैंने g की पावर माइनस s से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस इज इक्वल टू 1 हो गया। जी एस इंटू जी की पावर माइनस एस इज 1 एंड सो जी हैज फाइनाइट ऑर्डर, कि ये आपके पास एक नंबर आ गया जी की पावर आर माइनस एस जो इसको 1 कर रहा है। तो इसका मतलब है इसका ऑर्डर या तो आर माइनस एस हो जाएगा या उससे भी छोटा होगा, क्योंकि ऑर्डर ने क्या होना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो उसकी पावर को आइडेंटिटी कर दे। An example of group with an element of infinite order is provided by the group GL2R and the matrix this since इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें, जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ मैट्रिसेस ऑर्डर 2 क्रॉस 2, ये अगेन चैप्टर 2 का टॉपिक है, मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा एग्जाम्पल को, इसको छोड़ रहा हूँ ताकि हम फिर बाद में देखेंगे किसमें। हाँ, उसके लिए आप ये कर सकते हैं से set of positive rational numbers, set of positive rational numbers, ठीक है, समझ गया। आप जानते हैं कि अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस बिकम्स ग्रुप,
अंडर मल्टीप्लिकेशन दिस बिकम्स ग्रुप। तो क्या आप बता सकते हैं कि इस ग्रुप में 1/2 तो इसका एलिमेंट होगा, क्योंकि 1/2 इज ए पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो 1/2 की क्या पावर उसे 1 के बराबर कर देगी? एक पावर तो बहुत सिंपल है कि 1/2 होल पावर 0 इज 1। चलें आप इस पे सोचें, मैं यहाँ पे सर और थोड़ा कोई पावर सा नहीं होगी? ये और कोई नहीं होगी इसके अलावा, 0 और के कोई अलावा? भी नहीं होगी। वेरी गुड। तो इसलिए पावर जो इसके ये इन्फिनिट ऑर्डर का एलिमेंट होगा। तो रैशनल नंबर्स में सिवाय पॉजिटिव रैशनल नंबर्स में सिवाय 1 के 1 का ऑर्डर 1 है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 रहेगा, और बाकी किसी एलिमेंट का रैशनल नंबर्स के ग्रुप में ऑर्डर फाइनाइट नहीं होगा। If G is an element of order n, it follows that G raised to power n minus 1 is the inverse of G। ये भी आपको पता चल गया, क्योंकि G into G raised to power n minus 1 वो 1 के बराबर हो जाए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट मंडे को हम देखेंगे कि इससे आगे का हिस्सा, इससे आगे के हिस्से को हम कंटिन्यू करेंगे, और मैं बोर्ड को भी कोशिश करूंगा कि इस्तेमाल कर सकें।